عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیجئے، اپنی امت کے لوگوں کو ارشاد فرما دیجئے، یا عبادی، مولانا بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا، یا عبادی کا مطلب یہ ہے میرے بندے، جس طرح میں کہتا ہوں یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ میرا قریبی عزیز ہے، اس کے ساتھ تو میرا بہت گہرا تعلق ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندے، اللہ رب العالمین کتنی محبت سے کہہ رہی ہیں، یا عبادی، او میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، تو نے اپنے ذات کے اوپر جتنی ظلم کیا ہے، تو نے اپنے اوپر جتنی نقصان اپنا کیا ہے، یہ یاد رکھ لو، اگر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی ایمان والا گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی قسم اس سے میرے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے میرے اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جو بھی انسان ظلم کرتا ہے، جو بھی انسان زیادتی کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے، تو نے اپنے اوپر جتنی ظلم کیا، اپنے اوپر جتنا بھی تو نے ناانصافی کی ہے، تو نے جو کچھ اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے، پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیا مطلب ہے؟ میں دوسرے لفظ میں آپ کو یوں سمجھا دوں، اللہ رب العالمین کہنا چاہتے ہیں او میرے بندے، آج تک تو نے جتنی بھی میری نافرمانی کی، تیری عمر ہو گئی زیادہ، 60-70 سال کی تیری عمر ہو گئی، 80-90 سال کی تیری عمر ہو گئی، تیرے بال سفید آ گئے، تیرے ہاتھوں میں لرزہ آ گیا، اب تیرے ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں ہے، اب تیری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اب تیرا دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہا، اب تیرے پاؤں چلنے کے قابل نہیں رہے، اب تو دنیا کے کسی کام کا نہیں رہا، اب دنیا والے تجھے ایک فضول چیز سمجھتے ہیں، دنیا والے اب تجھے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، تجھے اپنے گھر والے بھی اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ میرے بندے، اگر پھر بھی تیری ابھی سانس چل رہی ہے، تیرے جسم کے اندر یہ سانس ابھی موجود ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ میں نے تو گناہ بھی بڑے کیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آ کر سرگودا کی مسجد میں بیٹھ کر چک 45 کی مسجد صدیق اکبر کے کونے میں آج رات بیٹھ جاتا ہے، شب رات کی رات ہے، اللہ اکبر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ میں نے میری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، اللہ ساری زندگی تیری بغاوت میں گزری، اللہ ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی، اللہ ساری زندگی میں تو تیرے دروازے پہ نہیں آیا، اللہ ساری زندگی میں تو سے دور بھاگتا رہا، اللہ ساری زندگی میں نے تیرے دین کی مخالفت کی ہے۔ اللہ آج مولانا حفیظ اللہ صاحب نے حکم کیا، آج مولانا حفیظ اللہ صاحب نے تیری رحمت کی آیتیں سنائی، آج مولانا حفیظ اللہ صاحب نے قرآن مجید سنایا، احادیث سنائی، میرے دل میں آ گیا اللہ میں تیرے دروازے پہ آ تو گیا ہوں مولا، دنیا کے اگر کسی بڑے آدمی کے دروازے کے اوپر چلے جاؤ، اگر کوئی بڑا آدمی ناراض ہو، وہ تانے مارتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو اب آیا جب تیرے سارے دروازے بند ہو گئے، تو اب آیا جب تیرے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا، تجھے تو میرے دروازے پہ آنا ہی تھا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کوئی تانا نہیں مارتی، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو اپنا گنہگار بندہ آتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندے تو نے اپنے اوپر ظلم کیا ٹھیک ہے، لیکن اب تو آ گیا نا میرے دروازے کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اب تو آ گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، صلاۃ التوبہ کی نیت کر لے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اپنے آپ کے گناہوں کو یاد کر لے، اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر لے، ایک ایک گناہ کا میرے اللہ کو پتہ ہے، تیری جوانی کا میرے اللہ کو پتہ ہے، تیرے کاروبار کا میرے اللہ کو پتہ ہے، تیری خلوت کا بھی میرے اللہ کو پتہ ہے، تنہائی میں تو نے کیا گناہ کیے میرے اللہ کو پتہ ہے، تو نے اجتماعی طور پر کیا گناہ کیے میرے اللہ کو پتہ ہے، تو نے کہاں کہاں کیا کیا، اللہ کی قسم اللہ ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن جب ہم اپنے گناہوں کا
اقرار کریں گے، اقرار کر کے اللہ سے مانگیں گے، کہیں گے اللہ مہربانی فرما آپ مجھے معاف فرما دے، اللہ میں تیرے دروازے پہ آیا 50 سال ہو گئے تیری بغاوت کرتے کرتے، 60 سال گزر گئے اللہ تیری نافرمانی کرتے کرتے، اب تو بال بھی سفید آ چکے ہیں، اب تو گھر والے میری بات بھی نہیں سنتے، اب تو میری اولاد بھی مجھے بوجھ محسوس کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کوئی بات نہیں تو آ گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا بندے کی توبہ کے انتظار کے اندر اللہ رہتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ اللہ سے توبہ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی آنکھوں میں سے 2 آنسو گراتا ہے، موتی کی طرح وہ آنسو نیچے نہیں پہنچتے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے او مسجد صدیق اکبر کے رہنے والے فرشتوں آج گواہ ہو جاؤ، میں نے رانا صاحب کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس ملک صاحب کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس خان صاحب کو معاف کر دیا ہے، یہ جتنے بھی گناہ لے کے آیا ہے آج میں نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بلکہ قرآن شریف کی آیت آتی ہے اللہ خالی معاف نہیں کرتے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ توبہ تو کر، میں تیرے گناہ خالی معاف نہیں کروں گا، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں 50 60 70 سال کے گناہ ہیں میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اللہ کی قسم تیرے میرے مانگنے کی دیر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، جیسے ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت جی ہم اس رات کے اندر اللہ سے کیا مانگے، ہم کون سی دعا مانگے، اللہ کے سامنے کس طرح ہم عاجزی نیازی کرے، اللہ کے سامنے ہم کیا پڑھیں، اللہ کے سامنے ہم اس رات میں کیا عبادت کریں۔ اور میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیحات کرو، درود شریف کی کثرت کرو، پھر ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو۔ جو اس حدیث پاک میں 3 چیزیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، بلکہ اللہ خود حکم کرتے ہیں، اللہ خود فرشتے کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ بتاؤں آپ کو وہ کیا چیزیں ہیں؟ سبحان اللہ کہنا بلند آواز سے۔ اللہ کتنی چیزیں کہتے ہیں؟ 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ بلند آواز سے کتنی چیزیں ہیں؟ پوری توجہ رکھنا۔ یہی انسان کو اگر 3 چیزیں مل گئیں تو انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ اللہ سے توبہ کرنے والا، کوئی ہے مجھ اللہ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ دیکھو نا سب سے پہلے انسان اگر اللہ سے استغفار کرے، اگر اللہ سے توبہ کرے، اگر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتے ہیں۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا تو اللہ کو اتنا پسند ہے، بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے مطابق اپنا ہاتھ مبارک یوں پھیلایا ہوا ہے کہ اس وقت میرا گنہگار بندہ آ کر میرے ہاتھ کے اوپر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والا جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایمان والو توبہ کرو۔ دیکھ لو یہاں ایمان والوں کے لیے ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ جو دیکھو جی مسلمان ہے، یہ جو دیکھو مولوی صاحب ہے، یہ جو دیکھو تبلیغی صاحب ہے، بھائی ایمان والا ہی صحیح گناہ ہوگا تو ایمان والے کو ہی اللہ نے کہا توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا
इलल्लाह तौबतन नसूहा, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों तौबा करो, तौबा सच्ची करना। इसीलिए मेरे भाई किसी गुनाहगार को कभी ताना न मारना, कभी किसी गुनाहगार को उसके गुनाह की वजह से आग न दिलाना। क्या कहते हैं कि गुनाह को बुरा समझो लेकिन गुनाहगार को बुरा ना समझो। कभी गुनाहगार को ताना ना मारना, कभी ये ना कहना पता नहीं उस अल्लाह को उसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, अल्लाह उसे तो जन्नत के अंदर भेज दे और तुझसे कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि तू जहन्नम के अंदर चला जाए। इसीलिए मेरे भाई सबसे पहली बात जो सबसे पहला ऐलान होता है अल्लाह की तरफ से, कौन है जो आज मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, कौन है जो आज मुझसे बख्शिश तलब करे, कौन है जो आज मुझसे माफ़ी मांगे। मेरे भाई यहाँ बयान के बाद उठ जाना, तन्हाई के अंदर बैठकर एक कोना पकड़ लेना, चाहे तेरी उम्र जितने भी गुजर चुकी है, चाहे तू जितने भी गुनहगार है, चाहे तू जितनी भी अल्लाह की नाफरमानियाँ कर चुका है, कोने में बैठ जाना, मस्जिद के कोने में बैठ जाना या घर में जाकर घर के कोने में बैठ जाना, कहना अल्लाह अल्लाह सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की है, अल्लाह आज बात दिल के अंदर आ गई है, मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, मेरे मौला मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ। यकीन के साथ जब तू दुआ मांगेगा, तौबा यकीन के साथ करेगा, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए करेगा, आँखों में से तेरे आंसू निकल आएंगे। अरे आंसू नहीं भी निकलते, रोने वाली शक्ल ही बना ले, सिर्फ आजिज़ी मेरे अल्लाह को दिखा दे, अगर थोड़ा सा झुकना मेरे अल्लाह को दिखा दे, अल्लाह को सिर्फ इतना बता दे अल्लाह मैं तेरे सामने झुक के आ गया, अल्लाह मैं आज ही करके तेरे सामने आ गया, अल्लाह मेरा दिल इतनी सख्त हो चुका है कि अब आंखों में से आंसू नहीं निकलते। अल्लाह पाक फिर भी तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है, हमें 100% यकीन है कि अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता भी ऐलान कर रहा है, तो और मैं सुने या ना सुने, हमारे कानों तक वो आवाज़ आए या ना आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अल्लाह की कसम वो हक है, वो सच है और हमें यकीन है अल्लाह की तरफ से वो फरिश्ता ऐलान कर रहा है, ओ मुसलमानों, ओ ईमान वालों, ओ 45 चक के रहने वाले मुसलमानों, ओ सरगोदा के मुसलमानों, जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में बैठकर बयान सुनने वाले मुसलमानों, आओ आज अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अल्लाह खुद कह रही है, वाह मेरा अल्लाह तेरी कितनी बड़ी रहमत है, वो मालिक खुद कह रहा है, आओ मुझसे बख्शिश मांगो, आओ मुझसे माफ़ी मांगो, आओ मुझसे गुनाहों की तौबा करो, आओ आओ मैं तुझे माफ़ करने के लिए आज मेरा अर्श पहले आसमान के ऊपर आ चुका है। कितनी बड़ी बात है। क्या होता है पहला ऐलान, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला। देखो जब इंसान माफ़ी हो जाए, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, अर्ज़ किया हज़रत औलाद नहीं है, कोई वजीफ़ा बता दें। फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत किया कर, अल्लाह से माफ़ी मांगा कर। थोड़ी देर गुजरी, दूसरा आदमी आ गया, हज़रत माशी तंग दस्ती है, हज़रत हालात बड़े परेशान है, फरमाया इस्तिग़फ़ार किया कर। तीसरा आदमी आ गया, हज़रत बारिश नहीं हो रही, फसलात का नुकसान है, हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया कर। अल्लाहु अकबर। साथ में बैठे खलीफा, उसने अर्ज़ कर दिया, कहने लगा हज़रत बीमार मुख्तलिफ आए, लोगों ने आकर मुख्तलिफ अर्ज़ किया, किसी ने औलाद के लिए कहा, किसी ने माशी तंगदस्ती के लिए कहा, किसी ने बारिश के लिए कहा, आपने सबको एक ही वजीफ़ा बता दिया, एक ही इलाज बता दिया कि इस्तिग़फ़ार किया करो। हज़रत ने जवाब दिया, फरमाया पता है कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जिस तरह सर्दियों के मौसम के अंदर दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। जब इंसान के जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं फिर वो अल्लाह से जो भी दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं। और कुरान शरीफ में भी अल्लाह ने फरमाया, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना
युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना वजअलनाकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल में इजाफ़ा फरमाएंगे, अल्लाह तुम्हारी औलाद में इजाफ़ा फरमाएंगे, अल्लाह तुम्हें बेटों की दौलत से नवाजेगा, अल्लाह आसमान से भी बारिश बरसाएगा। आज भी मेरे भाई बारिश नहीं होती, मुसलमान परेशान है, ज़िम्मेदार परेशान है। कई दफ़ा लोग कहते हैं हज़रत दुआ करें बारिश हो जाए, कई महीने हो गए बारिश नहीं होती। मेरे भाई आज की रात दिल खोल के इस्तिग़फ़ार करो, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द ही बारिश अता फरमा देंगे। दूसरा, अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ता ऐलान करता है वो तो तेरी मेरी ज़रूरत है, हर एक मुसलमान की ज़रूरत है। पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनना। कहते हैं हाल मिन मुस्तरज़क़िन, कौन है, कोई है जो आज अल्लाह से रिज़्क़ तलब करे, कोई है जो आज अल्लाह से माल मांगे, दौलत मांगे। एक बात मेरी ये याद रखना, रिज़्क़ का मतलब आजकल आप और मैं ये समझते हैं कि पैसे को रिज़्क़ कहते हैं, पैसे को रिज़्क़ नहीं कहते। ये बात समझ के जाओ, आज अगर आपको अल्लाह ने सेहत दी है ये भी रिज़्क़ है, अल्लाह ने आपको औलाद दी है ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने बेटे दिए ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने बेटियां दी हैं ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने अपना मकान दिया ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है मुआशरे में ये रिज़्क़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दी है ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने नेक बीवी दी है ये रिज़्क़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारियों से महफूज फरमाया ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दी ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने नेक काम करने की तौफीक अता फरमाई ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने अच्छी सोहबत अता फरमाई ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने उलमा से ताल्लुक़ नसीब फरमाया ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने नेक लोगों के साथ बैठना नसीब किया ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने मस्जिद में आने की तौफीक दी ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने आपको नेक औलाद दी ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने आपकी औलाद की परेशानी से महफूज फरमाया ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने आपको दौलत दी ये रिज़्क़ है। तो इसीलिए मेरे भाई रिज़्क़ का मतलब ये समझ के जाओ, रिज़्क़ का मतलब खाली पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन उस पैसे के से ज़्यादा उसे बीमारी लगी हुई है। बाज़ लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन अल्लाह ने सेहत दी है, कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है हल मिन मुस्तरज़क़िन, कौन है जो आज मुझसे रिज़्क़ तलब करे। मांग लो अल्लाह से, आज रिज़्क़ माल ही मांग लो। अपना मकान नहीं है अल्लाह से मांग लो, गाड़ी नहीं है अल्लाह से मांग लो, मुआशी तंगदस्ती है अल्लाह से मांग लो, औलाद के लिए मांग लो, बच्चों के लिए मांग लो, बेटियों के लिए मांग लो, घरवाली के लिए मांग लो, बच्चों की नेकी के लिए मांग लो। आओ आज अल्लाह का दरियाए रहमत जोश के अंदर है, जो भी मांगते जाओगे अल्लाह देता जाएगा। तुम्हारे मांगने की देर है, अल्लाह के देने की कोई देर नहीं है, सिर्फ झोली फैलाने की देर है। अल्लाह झोलियां भर देगा। अल्लाह की कसम, ये तो वो अल्लाह ऐलान कर रहा है और उस अल्लाह की तरफ से फरिश्ता ऐलान कर रहा है जो रिज़्क़ का भी मालिक है, जो बादशाहों का भी मालिक है, जो सदर का भी मालिक है, वज़ीर आज़म का भी मालिक है, जो सारी की सारी दुनिया के ख़जानों का मालिक है, जो ज़मीन के ख़जानों का भी मालिक है, आसमान के ख़जानों का भी मालिक है। दुनिया के ऊपर फरमाया जितने जहान हैं तमाम के तमाम जहानों का मालिक है, मौत का भी मालिक है, ज़िंदगी का भी मालिक है, नफ़े का भी मालिक है, नुकसान का भी मालिक है, जो सारी की सारी दुनिया का मालिक है। अरे वो मालिक कह रहा है मुझसे मांगो। मैं आपको यूँ बताऊँ कि अभी कोई बड़ा आदमी आकर अपने साथ पैसे लेके आ जाए, कहे आज मुझसे जो जितने पैसे मांगेगा मैं उसको देता जाऊँगा, हमें उसके ऊपर तो यकीन आ जाएगा यार ये सेठ आदमी आया है, मैं इससे 1 लाख रुपया मांग लो। अल्लाह की कसम, वो तो बादशाहों का बादशाह खुद ऐलान कर रहा है कि मुझसे रिज़्क़ मांगो मैं देता हूँ, मुझसे रिज़्क़ मांगो मैं देता हूँ। मांगो तो सही, तुम्हारे मांगने की कमी है, मेरे देने के अंदर देर नहीं है। फैला दो आज उसके सामने झोली, तुम्हें जो भी मांगना है अल्लाह से मांग लो, अपने लिए मांग लो, अपनी औलाद के लिए मांग लो, अपनी नस्लों के लिए मांग लो। अल्लाह पाक
पाक तुम्हारी नस्लों तक बरकतें पैदा फरमा देगा। तो जो लोग पूछते हैं कि इस रात में अल्लाह से क्या मांगनी चाहिए, पहली बात है अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज़ अल्लाह से रिज़्क तलब करना चाहिए, अल्लाह से रिज़्क मांगना चाहिए। अल्लाह मुझे रिज़्क अता फरमा दे, अल्लाह मुझे वुसअत अता फरमा दे, अल्लाह मुझे फरमानी अता फरमा दे। अल्लाह से मांगो, अल्लाह देते जाएंगे। एक हदीस पाक में यूं भी आता है, फरमाया इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के पूरे साल का फैसला करते हैं कि ये बदबख्त होगा या नेक बख्त होगा, ये शकील क़ल्ब होगा या सईदुल क़ल्ब होगा, ये फरवानी इसको मिलेगी या इसकी तंगदस्ती होगी, इसको माल कितना मिलेगा, इसको बीमारी कितनी आएगी, इसकी औलाद होगी नहीं होगी, इसकी औलाद फर्मा बरदार होगी या ना फरमान होगी, इसको पूरे साल इसके मामलात क्या होंगे, इसको मौत आएगी अगर, तो वो भी लिख दिया जाता है। तो मेरे भाई आज तन्हाई के अंदर बैठकर अल्लाह से मांग लेना, अल्लाह मेहरबानी फरमा, मेरे जो बुरे आमाल है, अगर मेरे उन बुरे आमाल की वजह से तूने मुझे गुनहगारों की लिस्ट में लिख दिया है, अगर तूने मुझे बदबख्तों की लिस्ट में लिख दिया है, अगर तूने मुझे नाफरमानों की लिस्ट में लिख दिया है, अल्लाह मेहरबानी फरमा, तू लिखने पर भी कादिर है, तू मिटाने पर भी कादिर है। मेरे मौला अगर तू मुझे गुनहगारों में लिख चुका है तो आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, गुनहगारों की लिस्ट से मुझे निकाल दे। अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा दे। मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है, अगर उस अल्लाह ने मेरे बुरे आमाल की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से, अगर मेरी नाफरमानियों की वजह से मुझे बदबख्तों की लिस्ट के अंदर लिख भी दिया होगा, अल्लाह वहाँ से काट कर मुझे नेक लोगों की लिस्ट में डाल देगा। क्योंकि हदीस पाक के अंदर ये भी आता है, जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को उसके गुनाह भुला देता है, ज़मीन को भी भुला देता है, आसमान को भी भुला देता है, और ना क़यामत वाले दिन ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। लेकिन अगर अल्लाह तौबा कबूल कर लेते हैं, अल्लाह दुनिया को भी भुला देते हैं, चीज़ों को भी भुला देते हैं, फिर उसको नेक लोगों के अंदर शामिल फरमा देते हैं। तो मांग लो आज अल्लाह से रिज़्क, आज झोली फैला दो। आज मेरे अल्लाह का रहमत, दरियाए रहमत, दरियाए सखावत जो उसके अंदर है। तीसरी चीज़ जो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता तीसरा ऐलान करता है, अल्लाहू अकबर। अल्लाह कहते हैं कि है कोई आज जो अपनी मुसीबतों की खुलासी मुझसे मांगे, जो अपने मसाइल का हल मुझसे मांगे, जो अपनी परेशानियों का हल मुझसे मांगे, जो अपनी तकलीफ़ों का हल मुझसे मांगे। आजा, आज अगर तुझे तकलीफ़ बीवी से है, अल्लाह से मांग के हल करवा ले। औलाद ना फरमान है, अल्लाह से मांग के हल करवा ले। बीमार रहता है, अल्लाह से मांग के हल करवा ले। माँ बाप की तरफ से कोई परेशानी है, अल्लाह से मांग कर हल करवा ले। हमसाइयों की तरफ से कोई परेशानी है, अल्लाह से मांग कर हल करवा ले। कोई कारोबार की तरफ से परेशानी है, अल्लाह से मांग कर हल करवा ले। किसी किस्म की मुसीबत के अंदर घिरा हुआ है, अल्लाह खुद ऐलान कर रहे हैं, मांग मुझसे, आज मैं मुसीबतें ख़त्म कर दूंगा। मांग मुझसे परेशानियों का हल, आज मैं परेशानियां ख़त्म कर दूंगा। अरे जब देने वाला कह रहा है, जो मालिक है वो कह रहा है, जो खालिक है वो कह रहा है, जो इज़्ज़तों का मालिक है वो खुद कह रहा है, जो ज़िल्लतों का मालिक है वो खुद कह रहा है, जो बादशाहों का मालिक है वो खुद कह रहा है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो मेरे भाई देख लो, वो मालिकुल मुल्क है, वो तो बादशाहों का बादशाह है, वो दुनिया के ख़जानों का मालिक है, वो इज़्ज़तों का मालिक है, वो ज़िल्लतों का मालिक है। वो चाहे तो बादशाह को तख्तेदार पे पहुंचा दे, चाहे तो तख्तेदार वाले कैदी और मुजरिम को उठाकर बादशाह बना दे।
क्योंकि सारी की सारी ताकतें उस अल्लाह के हाथ के अंदर है। मेरे भाई आओ आज की रात अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से आज नियाज कर लो। ये रात बड़ी कीमती रात है, एक दफ़ा ये रात गुजर गई तो फिर नहीं आएगी। और मैं एक दो चीज़ें अर्ज करता जाऊँ। अल्लाहू अकबर। बहुत सारे लोग अभी आपने बाहर देखा होगा, अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया, लोग नेकी की तरफ नहीं आते, शोर शराबा करते हैं, पटाखे मारते हैं, पत्नी क्या क्या नाजायज़ काम करते हैं। आपको पता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ है? उलमाए कराम से जाके पूछो। फरमाया जब ये रात आई, इस रात की रहमतें आई, इस रात की बरकतें आई, इमाम उलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया इस रात को इबादत करने का। जब अल्लाह के नबी इबादत करने के लिए जाते, जब सहाबा इबादत के लिए जाते, तो कुफार मक्का सीटियाँ मारते थे, कुफार मक्का शोर मचाया करते थे। वही आज सीटियाँ चली हैं, वही कुफार मक्का का सेवा, शोर करना, पटाखे फोड़ना, सीटियाँ मारना, शोर शराबा करना। मेरे भाई अपनी औलाद को समझाओ, अपने घर वालों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, मार कर नहीं समझाओ, अपने हमसायों को समझाओ, प्यार करके समझाओ कि ये शेवा इस्लामी नहीं है, ये शेवा मुसलमानी नहीं है, ये शेवा कुफ्र है, ये कुफ्र का तरीक़ा है जिस तरीके पर आप चल रही हैं। आज हम अपने बच्चों की अपने घर में तरबियत नहीं करते, बच्चों को बताते ही नहीं है, बल्कि बच्चों को क्या बताए। आज तो मुसलमान इतनी उम्र हो चुकी है, उसको खुद को पता नहीं है मैंने करना क्या है, कर क्या रहा हूँ। इसीलिए मेरे भाई आज जो भाई पटाखे फोड़ रहे हैं वो बेचारे लाइल्म हैं, उनको पता नहीं है इबादत के अंदर वो कुफार की तरह शोर शराबा, इबादत के अंदर खलल अंदाजी, इबादत के अंदर आकर पटाखे बजाना, शैतान उनको उभारता है, शैतान उनको लेके आता है, मस्जिद के पास जाकर पटाखा फोड़ देंगे। एक बंदा जो इबादत कर रहा है वो इबादत के अंदर खलल आएगा, वो बाहर निकलेगा, उसको समझाने के लिए जाएगा, उसका वो वक़्त ज़ाय हो जाएगा, या कम से कम वो बाहर नहीं निकलेगा, उसकी तन्हाई के अंदर, उसकी खलवत के अंदर, उसकी इबादत के अंदर फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई ये काफिरों वाला सेवा छोड़ दो। और जो लोग ये करते हैं और अपनी औलाद को नहीं समझाते, उनको क्योंकि इल्म नहीं था, अपनी औलाद को समझाए। अगर अपने घर के अंदर देखे, आपकी औलाद भी अगर गली मोहल्ले के अंदर पटाखे बजा रही है, अल्लाह से आप भी माफ़ी मांगना और अपनी औलाद को भी प्यार से समझाना कि अल्लाह से तौबा कर लो। ये बड़ी बड़ी भैड़ी बात है, इंतहाई गलत बात है। अल्लाहू अकबर। जब हम देखते हैं दिल कुड़ता है कि ये मुसलमान बेचारा इसने करना क्या था, कर क्या रहा है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था ये तीन चीज़ें मांगनी है अल्लाह से, याद है ना आपको? कौन कौन सी? पहली बात इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना, गुनाहों की माफ़ी मांगना। जब इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है फिर अल्लाह से जो मांगे अल्लाह देता चला जाता है। दूसरा अल्लाह से रिज़्क़ मांगना। क्या मांगना? रिज़्क़ मांगना। ये किसी पीर और फ़कीर की बताई हुई बात नहीं है, ये किसी पीर और कारी और हाफिज़ आलिम से बताया हुआ कोई वजीफ़ा नहीं है। अल्लाह की दरबार में मांगना है, दिल से मांगना, अल्लाह दे देगा। पूरे के पूरे साल की रोज़ी का अल्लाह बंदोबस्त कर देगा, पूरे साल का बजट बन रहा है आज। और तीसरी बात अल्लाह से मसाइब के लिए हल मांगना, मुश्किलात का हल मांगना। अल्लाह से मांगोगे, दिल से मांगोगे। अब दिल से कैसे मांगा जाता है? आखिरी वाक़या अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह था, तवाफ़ कर रहा है, तवाफ़ काबा देखा एक नाबीना है, आँखों की बिनाई से महरूम है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, अल्लाह मुझे आँखें दे दे, अल्लाह मुझे बिनाई अता फरमा दे। उसने जाके देखा कि ये नाबीना है, दुआ मांग रहा है, इसको आंखें नहीं मिलती। उसने कहा इसको पकड़ के लाओ। उसको पकड़ के लाए, कहा मुझे जानता है मैं हज्जाज इब्न यूसुफ हूँ। बड़ा जालिम था, फ़ौरन आदमी को कत्ल करा देता। कहने लगा मैं तवाफ़ करने जा रहा हूँ, मैं अपनी तवाफ़ मुकम्मल करके वापस आऊँ, अगर तेरी आंखें नहीं होगी तो मैं तुझे कत्ल करा दूँगा। अब उस नाबीने को भी पता था अगर मेरी आंखें ना आई तो ये वाकई मुझे कत्ल करा देगा। अब जो उसने दिल से मांगना शुरू किया, क्योंकि पहले तो खाली मांग रहा था, अब उसने दिल से मांगा, अब तो जान पे आके पड़ी थी।
اگر آنکھیں نہیں آتی تو جان جاتی ہے۔ اب اس نے دل سے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ مہربانی فرما آنکھیں عطا فرما ورنہ جان جاتی ہے۔ اب حجاج ابن یوسف طواف کر کے واپس لوٹا تو اللہ نے اس کو آنکھیں بھی عطا فرما دی تھی۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے دعا یہاں ہو رہی ہے، دماغ گھر میں چل رہا ہے۔ دعا تو اللہ سے ہو رہی ہے اور دل دوسرے طرف متوجہ ہے۔ دعا تو یہاں ہو رہی ہے، دماغ کے اندر اور کھچڑی پک رہی ہے، کاروبار کی طرف، باہر گاڑی کی طرف، ادھر نہیں۔ جب اللہ سے مانگنا، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دنیا کی کوئی چیز سامنے نہ ہو۔ جب اس طرح تو دل مانگے گا نا دل سے، یعنی اس طرح مانگ جس طرح تیری جان کے اوپر بنی پڑی ہے، پھر دیکھ میرا اللہ تیری جھولی میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔